and suddenly I was teaching very well. I was having a very stereophonic voice, अच्छा and one day I lost my voice. We go into something called alpha state, where we lower our brain waves, and in that state we have visualization and affirmation कि what I want to become. खाली देख के फायदा नहीं, you have to even speak the same language. अच्छा And once your affirmation and visualization is aligned, you get miraculous results. We were taught how to read. We were taught how to write. And we were taught how to speak. But we were never taught how to listen. Entire body should speak when you communicate. अपना जो माइंड है ना, on auto mode, it is always negative. अगर उसको खुला छोड़ दो, नेगेटिव ही है. पॉजिटिव करना पड़ता है. सबका जिंदगी में अलग अलग चैलेंजेस है. कुछ नहीं, हर एक का एक प्रॉब्लम रहते हैं. तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम में आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखते हैं? और सब हालत खराब है, पैसा नहीं है, हेल्थ का प्रॉब्लम, हाउ डू यू हैंडल दैट? वो क्या कर सकते हैं? Namaskaram. Today we have on our show C.A. Ramnath Iyer. And believe me, what an honor I have to have him on the show. Like always I ask, who's Iyer sir? I am a chartered accountant, born, brought up in Mumbai, and I am running a coaching institute in the name of Iyer Commerce Classes for the last 27 years. And even before that, I was teaching at Podar College and many other institutes. And when I started my own Iyer Commerce Classes, and it has completed about 27 years as of today. Okay. Together, along with that, I have done Silva Mind Control as well as NLP, and I'm also giving lectures on mind control, meditation, and how to activate right brain, positive mental attitude, memory techniques, and so on. Sir, I had the opportunity to being and hearing you at one of the events, and it was such a pleasure to hear you because you are fun, you are joyful. So what led you to doing NLP and Silva Mind Control? How do you use it in your day-to-day life, and how do you teach people? What is the magic you have? Actually, it was in 1991, Okay. long way back. I was teaching in a coaching institute, and suddenly I was teaching very well. I was having a very stereophonic voice, अच्छा and one day I lost my voice. अच्छा ये हो गया ऐसा? I could not teach. So I went to a hospital. They did something called endoscopy, and the doctor detected that it is chronic laryngitis. Okay. And he asked me to leave the teaching profession, but somehow I wanted to persist. I am a born teacher. Huh. I felt. So I tried allopathic, I tried Ayurvedic, I tried homeopathic, but nothing helped. And at that time, in Times of India, I saw an ad, Silva Mind Control, at a Taj Hotel VT, 4 days course. Somebody suggested, why don't you join and try? So maybe मेरा आवाज खोया, इसलिए मैं वो कोर्स किया. अच्छा. And because of that, I regained my voice again. I grew myself up spiritually, financially, as a person. And it has really benefited greatly, personally for me in my life. And around in 2008, I did this NLP, 10 days course. Oh. And again, it has further helped me in growing up in my life. So, when you talk about you lost your voice, what exactly? You couldn't talk, only बात ही नहीं कर पा रहे थे? बात करते थे लेकिन वो हस्की वॉइस अच्छा, पेट से आवाज निकलता था लेकिन मुश्किल था. अच्छा. So ये सिल्वा माइंड कंट्रोल में यूजुअली क्या करते हैं आप लोग? मतलब व्हाट इज दैट यू डू? So we do relaxation. We go into something called alpha state. अच्छा. Where we lower our brain waves. And in that state, we have visualization and affirmation कि what I want to become. खाली देख के फायदा नहीं, you have to even speak the same language. अच्छा. And once your affirmation and visualization is aligned, you get miraculous results.
So the miracle happened. आपका आवाज भी वापस आ गया. आवाज वापस आ गया. I could cure, or I should say, I could control my asthma. I was having asthma from childhood. I never imagined that I will be able to cross 40 years. But the moment Silva Mind Control came into my life, I got proper medicines. I won't say that asthma is eliminated, but I got proper medicines at the right time, by which I am able to control. Today, even with that asthma, I am able to play 1 hour of badminton every day. I still play. अच्छा. At this age. So you said imagination and affirmations are the things which goes into Silva Mind Control. Would you like to say something? किस तरह होता है क्या? How does it work on? I'll give you a very simple technique in this. Suppose you are having a problem. First of all, you have to go into that alpha state. That is called meditative state. That is very important. Many people try to see the results without going into the alpha state. We are talking now, that is called beta level. We are in beta. So meditation may we go to alpha level. Okay. And then you imagine the problem in a blue framed mirror. Okay. You look at a blue framed mirror and see the problem in that mirror for maybe 5 to 10 seconds. With the eyes closed. Everything eyes closed. Okay. Take the mirror, throw on the right side. Okay. From the left, again take one more mirror. It should be white framed. Okay. And there you start looking at the solution. Just see the solution. Don't imagine how it will happen, who will bring the result, forget it. Just see the solution. In blue framed mirror, asthma, suffering, throw it. Bring the from left to right, in front of you, bring the white framed mirror. And in that see, asthma is gone, you are playing, enjoying life. Just keep on visualizing till you start getting the results. So how often should you do this? You can do it continuously. So there is no particular time. No particular. I won't say 3 दिन में result आएगा, 5 दिन में result आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. 10 दिन में result आएगा, ऐसा नहीं है. You just trust. When the time comes, he will give you the result. When you say he, there's a supreme power which Definite. 110%. So, okay, we spoke about Silva Mind. Can you tell me about NLP and its applications? How does it work? And what is NLP? Because ये word बहुत सुना जाता है, लेकिन NLP का मतलब नहीं मालूम किसको क्या है करके. Silva Mind Control में we are taught how to activate the right brain. Okay. We got 2 types of brain. Right. And normally we use only the left brain, which is only 10% of total brain power. The remaining 90% is what is called right brain, which we hardly use. Achha. So there they teach us how to activate the right brain. NLP is neuro-linguistic programming. Neuro means something to do with the brain. Linguistic with the words and programming. Ultimately, it amounts to the same thing. You use words, you visualize, and you get the results. There are some other techniques like reframing, like anchoring, like mirroring in NLP, which gives you much more better results, which are all specific results. Okay. Anchoring, I'll give you a very simple example. बचपन से सिखाते हैं. समझो आप कार में या बस में जा रहे हो और सामने से एक मंदिर आया तो ऐसा कर लेते हो. That is anchoring. आदत है. आदत. So good habits can be anchored. Okay. And it can happen at any age? There's no age limit for this. Yeah, because some habits, कुछ आदत ऐसी लगती है कि वो लाइफ टाइम पे ले रह जाते हैं. But any habits can be also reduced, eliminated. Even Silva Mind Control के बाद समझो you have a kid at home, 4-5 बरस का, खाना नहीं खाता है, चिक्कू नहीं खाता है, तो रात को वो सोने के बाद एटलीस्ट 1 hour सोने के बाद when the child is in deep sleep, तो उसका माँ की आवाज से उसको बोलने का, माँ बोलना चाहिए कि बेटा कल तू चिक्कू खाएगा, कल तू चिक्कू शुगर खाएगा, तू चिक्कू खा रहा है, तू चिक्कू खाते रहेगा, ऐसा मिनिमम घड़ी रख के 5 minutes बोलने का माँ. एक ही सजेशन, एक ही वर्ड, एक ही वर्ड. और उस समय वो डीप स्लीप में भी बच्चा हिलेगा. अच्छा. तो समझ जाना है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है. अच्छा. नेक्स्ट डे वो आके चिक्कू मांगेगा. अच्छा. ट्राई करो. इन चिल्ड्रन इट वर्क्स लाइक मैजिक.
एडल्ट्स में भी हो सकता है ऐसा? एडल्ट्स में थोड़ा ज्यादा अक्ल वापरते हैं. As a joke. No, you can joke, sir, because I like As the a way joke, I tell in my session Yeah. कि वाइफ लोग ये हस्बैंड में वापरना नहीं कि वो सोने के बाद कि कल उठ के तुम दारू छोड़ देगा उसके लिए तुमको 2-3 साल करेगा तो शायद छोड़ेगा वो. तो बचपन बच्चे लोग पे इट वर्क्स लाइक रियल मैजिक. तो बच्चे लोग का क्या एज ग्रुप तक चलता है ऐसा? 11-12. अच्छा, उसके ऊपर भी समझो तुमको कोई श्लोक सिखाने का है तो सोने के बाद उसके कान में जाके श्लोक बोलो ना, रोज गाओ ना. I'll give you an example कि even in adults how the subconscious mind works. बहुत भागदौड़ करते हैं और 15 अगस्त को छुट्टी आती है. हाँ. तो 15 अगस्त को क्या करते हैं, चलो ज्यादा सो लेते हैं, सोते हैं उन लोग. हाँ. नॉर्मली इंडियंस ज्यादा सोते हैं. रोज जो 6 बजे वाला उठना रहता है 7 बजे उठते रहे और 9 बजे तक सोता है. बरोबर. लेकिन बाजू की गली से आवाज आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती. आवाज आता है बाजू की गली से, ये सो रहा है. फिर वो गाना बंद हो गया रहता है, ये लेकिन उठता है और पूरा दिन भर वो गुनगुनाते रहता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये गाना मेरे दिमाग में आया कहां से. तो नींद में सुना है, सबकॉन्शियस माइंड सुना है गाना. इट हैपेंस. So that's wonderful. I mean, you have to through Silva Mind Control NLP. आपने you understood how to work on people also. आप Yes. training करते हैं and all that. इसमें mind mapping कहाँ पे आता है? What is mind mapping and how do you use it in your day-to-day life in your training and all that? Yeah. Mind mapping is a different concept altogether in this. So this is the third part of all of what you do. माइंड मैपिंग में क्या होता है, सपोज आजकल जो स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पढ़ते वो बाय हार्ट नहीं होता है, क्योंकि दे गेट बोर्ड, ब्रेन गेट बोर्ड. इज कॉल्ड लीनियर लर्निंग. लीनियर. तो ऐसा लेफ्ट टू राइट पढ़ते बोर हो जाता है. तो सेम थिंग वी आर टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ ए मैप. कि मैप का मतलब एक राउंड बनाते हैं सर्कल, उसके बीच में क्वेश्चन लिखते हैं. उसके बीच में क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड समथिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड इलेक्ट्रिसिटी. अभी उसका आंसर में वही सर्कल में सन जैसा एरो मार दिया 1 2 3 4 5 6 और एक एक एरो में एक एक पॉइंट लिखवाते हैं. उसमें और सब पॉइंट रहेगा तो एरो को और बढ़ा भी सकता है, एरो का भी ब्रांचेस कर सकते हैं. और बाद में हम बच्चों को बोलते हैं तो बयाट नहीं करने का, यही ड्राइंग पेपर को दिन में 3 बार देखने का कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ डिमांड इलेक्ट्रिसिटी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5. देख लिया, बंद कर. बस बयाट नहीं करने का, खाली देखना है, देखने का, मन में पढ़ने का, लेकिन बयाट मत कर. 3 बार दिन में कर, दिन में 3 बार कर. ऐसा तीसरे दिन में तुम खाली पढ़ेगा ना, वो मैप तुम्हारा दिमाग में घूमेगा. मैप इज easier to remember. अच्छा. If I ask you where is Gujarat, तो you will say above Maharashtra. कैसे मालूम पड़ा above Maharashtra? मैप में देखा. अच्छा. समझो स्कूल में पढ़ा रहेगा कि गुजरात इज above Maharashtra and east of this and west of that. सेंटेंस वाइज याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसा मैप देखा तुम्हारे दिमाग में आ गया above Maharashtra. अच्छा. तो मैप वे ऑफ लर्निंग इज मोर परमानेंट, मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर एंजॉयबल. ये जब बिजनेस में आते हैं तो ये ऑन सर्कल वी राइट द प्रॉब्लम. वन प्रॉब्लम वी हैव, हाउ टू ब्रिंग फाइनेंस इनटू बिजनेस. एक प्रॉब्लम है तो उसका एरो मारते हैं. पहला आंख बंद कर लेने का, 10 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करके रिलैक्स हो जाने का, आंख खोल के जो आंसर आया 1 2 3 4 लिख देने का. हाउ टू गेट फाइनेंस, तो यू कैन राइट सेल एट मोर प्राइस और टेक लोन फ्रॉम द बैंक और लूट अ बैंक. जो भी क्रिएटिव आइडियाज सब लिखते जाओ विदाउट थिंकिंग कि राइट है कि रॉन्ग है. एंड देन यू रिलैक्स, देन यू यूज अ लॉजिकल ब्रेन एंड ट्राइंग टू फाइंड कि मेरे धंधे में कौन सा अप्रोप्रिएट है एंड सेलेक्ट वन. अच्छा. दैट इज माइंड मैपिंग. उसमें ऐसा भी आता है कि समझे बीच में प्रॉब्लम है, देन यू राइट व्हेन डू यू वांट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इन डेट लिखो. हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम, खुद का नाम है, 2-3 लोग का नाम लिखो. वेयर यू वांट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड,
प्रॉब्लम किधर ऑफिस में है वो लिखो, और बाद में 2 मेन क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही में 4-5 अच्छा पावरफुल वाई होना चाहिए। ओके। और बाद में लास्ट वन, हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, उस पर भी 4-5 एरो आना चाहिए। ये सब दिखेगा ना, इट विल लुक लाइक ए मैप। दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। So generally it is like a circle which you draw and then you make the points like a Yes, sun. yes, That's yes. the way usually you Yes, and you get a very pictorial image of what you want to get instead of writing one by one. Okay, so the mind works in a certain way and that's how you use the best form to visualize and work on it. Inside the brain there are many cells. Right. I will say many currents are going on. All the cells are interrelated. वो मैप जैसा ही है, in the form of a map, you know. तो वही मैप को अपन पिक्चर में लेके आने का, where you will able to get the solution faster than the linear writing. Wonderful, sir. I mean, ये बहुत अच्छा लगा सुन के. So 27 years of teaching children of the higher, like a post 10th आपका your higher sir's class which teaches. Yes. You went on to teach businesses, leadership skills, effective goal setting. How do you help clients achieve this? Again, there are 2-3 topics in this. Achha. Suppose we start with goal setting. In every corporate setup, goal means only financial goals. That's usually how it is. That's how in every corporate setup. Yeah. Even घर पे भी अगर पूछेगा ना तो तेरा गोल क्या है, तो 5 लाख कमाने का है, 10 करोड़ कमाने का है, पैसे की बात करेगा. I have a different approach to this. कि we have personal goals, we have family goals, we have career goals, we have social and spiritual goals, and when all the goals work together only you get a wellness, a satisfaction in your life. Personal goal में you may have going to the gym or reading, meditation, yoga, everything. पर्सनल गोल, अकेला बैठ के जू बीच में बैठ गया, पर्सनल गोल. फैमिली गोल, फैमिली के साथ क्या क्या करते हो, फैमिली के 4 लोग साथ में टीवी देखते हैं, इज नॉट अ फैमिली गोल. स्टिल दे आर इंडिविजुअल ओनली, इट इज नॉट अ फैमिली एक्चुअली. हम साथ में घर पे बैठते हैं, कुछ मतलब नहीं उसका, कोई सब लोग अपना अपना पिक्चर देख रहे हैं यार. हाँ, चारों कोई क्रिकेट मैच देख के डिस्कस किया कि इसके बाद कौन बैटिंग करना चाहिए, कौन बॉलिंग करना चाहिए, देन देयर इज फैमिली कन्वर्सेशन. Otherwise, it's not a family time at all. Family goal में vacation आएगा, once in a week outing आएगा. Very important, but people think it is not crucial in our life. अपना पैसा ही सबसे important है. पैसा आके तो family satisfy होगा, ऐसा नहीं है. एक जमाना ऐसा था कि लोग केव में रहते थे, हस्बैंड जंगल में जाता था, बाला फेंक के कोई एनिमल को लेके आता था, वही पकाती थी, बच्चे खाते थे, 4-5 दिन 10 दिन खाते थे, वो लोग घर पे रहते थे, खत्म हो गया तो वापस हस्बैंड जाएगा. तो फैमिली वाज द मेन सेंटर, और बाद में कमाना वो सेकेंडरी, नीड बेस्ड. आज उल्टा हो गया है, करियर सेंटर हो गया है, जिम बाद में देख लेंगे, फैमिली को बोलते यार संभाल ले यार, नहीं जमते मेरे से, टाइम लेगा तो जाएंगे. सोशल गोल तो बहुत दूरी हो गया है, नो फ्रेंड्स, हार्डली गो टू टेम्पल. I personally go to temple every Tuesday. समझे कि नहीं? फ्रेंड सर्कल होता नहीं है. So all this when you merge together along with career, सबके लिए टाइम निकालेगा on weekly basis, not daily basis. At least once in a week family के साथ, once in a week friends के साथ, once in a week any spiritual goal, 5 days walking, 20 minutes per day डॉक्टर बोलते हैं. बचेला टाइम देव ना धंधे को. 8 घंटे से कम काम करेगा ना, 8 घंटे से कम काम करेगा ना, तो घर नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा. इन 8 घंटे से ज्यादा काम करेगा ना, तो तुम्हारा पर्सनल, फैमिली एंड सोशल सब अफेक्ट हो जाएगा. तो 8 घंटे से कम काम करेगा तो घर नहीं चलेगा, करना चाहिए 8 घंटा. लेकिन 10 घंटा 12 घंटा करेगा तो your personal life will be affected, family life will be affected, even social life will be affected. Sir, but we stay in a place like Mumbai जहाँ पे आप उससे कम काम करेगा.
एवरी इंडस्ट्री इज आस्किंग कि अभी ज्यादा काम करो, ज्यादा टाइम तो 70 आवर्स पर वीक बोले, हाँ तो बोले है ना, नहीं करने का ना, बट हाउ कैन यू, तो बोलते ना उससे भी घर नहीं चलेगा। कोई 8 घंटा 10 जितना जरूरी है उतना काम करेगा, समझो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जितना फास्ट होएगा खुद का धंधा खोल लेगा। अच्छा, नौकरी में जितना हो सके करने का। हाँ। हाउ आई स्टार्ट माय बिजनेस वाज आई वाज आल्सो वर्किंग समवेयर, हाँ। और 3 साल का एक्सपेंसेस घर का बैंक में जाके रखा, 3 years, 36 मंथ्स का घर का एक्सपेंसेस पहला बैंक में। एंड आई टोल्ड माय वाइफ, भले कुछ भी हो, भले एक भी स्टूडेंट नहीं आए मेरी जिंदगी में, 3 साल तक 1000 days बोलते गुजराती में, धंधा चलाने का। 3 साल में समझो कोई स्टूडेंट नहीं आया, लॉस में गया, देना मैं वापस नौकरी कर लेगा, मेरे पास उतना क्वालिफिकेशन है। लेकिन 3 साल तो मैं एफर्ट करने वाला हूं। 3 साल तक तुम किरकिर नहीं करने का कि क्यों धंधा चालू किया, अपन मद्रासी है, अय्यर के भी धंधा चल कराता है क्या, समझे कि नहीं, अपन नौकरी के लिए अच्छा है, बड़े बड़े कंपनी में सीईओ बन सकते हैं, ये सब मेरे को सुनने का नहीं है। 3 years यू हैव टू टॉलरेट मी, और उसका खर्चा मैं दे दिया। अच्छा, फाइनेंस उसके बाद ही तो आपने ऑलरेडी सेट कर दिया था कि इतना 3 साल का इतना अमाउंट लगता है एवरीडे एक्सपेंस के लिए, तभी एवरी मंथ सम पीपल से बिंदास घुस जाओ अपने पैशन में, जो होएगा देखा जाएगा। आई डोंट एग्री ऑन दैट। टेक द रिस्क विथ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। समझो घर से निकला और मोबाइल खोला कि उसमें 5% ही बैटरी है, तो तकलीफ तो होता है ना। आगे जाके जो होएगा देखा जाएगा ऐसा अपन बोलते नहीं है। 10 मिनट घर पे रुकते हैं, रिचार्ज करते हैं। कार से निकला पूना जाने का है, हर कार में पेट्रोल नहीं है, रास्ते में जो आएगा देखा जाएगा ऐसे नहीं बोलते हैं, पेट्रोल भरते हैं फिर आगे जाते हैं। तो विद एडिक्वेट सेफ्टी इन वन प्लेस, जो होएगा देखा जाएगा। मैं हैव सीन मेनी पीपल एंटरिंग बिजनेस और डूइंग द पैशन, जो होएगा देखा जाने में घर बिक जाता है, फैमिली बिगड़ जाता है। And if at all you are married, you are not risking only your own life, you are risking entire family's life यार। Right. समझा कि नहीं? रिस्क है तो इश्क ऐसा डायलॉग है। रिस्क है तो इश्क है अपना हर्षद मेहता का। लेकिन उसमें भी सेफ्टी होना चाहिए यार। You can't just enter blindly. सर वैलिड पॉइंट है, बिकॉज ये एप्लीकेशन जरूर, बिकॉज आई थिंक कभी कभी कॉन्सेप्ट बहुत अलग बोला जाता है, फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में कुछ अलग बात होती है। So how do you apply time management into your strategies of what you have to train people? Time management क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए सर? So when we talk about time management from the life point of view, मैं पहला लाइफ का बात करता हूँ। तो वीकली में you must definitely give time for personal work, you must give time for family, you must give time for social and spiritual। वीक में एक दिन तो कम से कम। Remaining time you give for office. Again, the moment you get up in the morning, you should be able to control the time. जैसा अलार्म बजा, नो स्नूज, कोई स्नूज बटन दबाते हैं तो और 10 मिनट, फिर वापस स्नूज बटन दबाते फिर और 10 मिनट। मतलब दिन के शुरुआत में ही तुम जिंदगी को पोस्टपोन कर रहे हो, पुश कर रहे हो। हाँ, पुश कर रहे हो। जैसा अलार्म बजा, मैं तो बोलता स्नूज के बाद ही उठने वाले, तो अलार्म तभी रखो ना फिर। जैसा अलार्म बजा 5 4 3 2 1 गड़ा उड़ जाने का, या मोबाइल को बाथरूम में रखने का, लेकिन उड़ जाने का। समझे कि नहीं? 5 सेकंड तक ब्रेन फंक्शन नहीं करता है। अच्छा, खाली 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो 5 4 3 2 1 जब गिनते हो ना तो यू आर काउंटिंग, तो ब्रेन फंक्शन नहीं करता है, उसे उड़ जाने का। लेकिन 6th सेकंड अगर सोया ना तो ब्रेन विल स्टार्ट हैविंग नेगेटिव थॉट्स कि चला और 10 मिनट सो लूं, कल मैं 12 बजे सोया था, मैं बहुत थक गया हूं, रात को बराबर नींद नहीं आया तो अभी मैं सो लूं, वैसे भी मैं ऑफिस में क्या उखाड़ने वाला हूं। ऐसा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने चालू हो जाते हैं और वहां अपना जिंदगी का पहला हार शुरू हो जाता है। तो जैसा सुबह उठेगा, अलार्म बजा, उठ जाने का, पहला चादर मोड़ फोल्ड किया, 1-2 ग्लास पानी पी लेने का, और वॉशरूम जाके
ब्रश करके 10 मिनट के अंदर बाहर आना चाहिए। हाँ। 10 मिनट क्यों सर? अगर तुम्हारा 15 मिनट रहेगा, स्टार्ट विद 15 मिनट, लेकिन अल्टीमेटली 10 मिनट में लेके आना, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे पास टाइम का प्रेशर है, टाइम का प्रेशर दिमाग में चलना चाहिए। मेरे पास 9 मिनट है, 8 मिनट है, 7 मिनट है, 6 मिनट है, मैं फटाफट करूं। आई एम अवेयर ऑफ द टाइम अवेलेबल विथ मी। आजकल का यंग जनरेशन वॉशरूम जाते हैं, मोबाइल के साथ वाईफाई चालू, आधा घंटा पौना घंटा अंदर ही बैठे रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह वगैरह। यूट्यूब इज मोस्ट डेंजरस। देखो व्हाट्सएप रहेगा तो भी वो मैसेज बंद हो जाता है, लिमिटेड नंबर ऑफ मैसेजेस है। यूट्यूब में मैं एक बार गया था, यूट्यूब में मैं डाला स्टैंड अप कॉमेडी, तो देख अगले दिन यूट्यूब करो तो 10 स्टैंड अप कॉमेडी मेरे सामने खड़ा है। क्योंकि एआई को मालूम है अभी इसको स्टैंड अप कॉमेडी चाहिए, वो भेजते रहते हैं और अपन उसमें घुस जाते हैं, फिर टाइम का पता नहीं चलता। एंड देन यू कम इन स्ट्रेस। और एक टेक्निक विच आई यूज्ड अ लॉट, पर्सनली आई यूज्ड। एक जमाने में मेरा 5:45 को लेक्चर होता था, 5:45 AM, तो मैं 4:45 को उठता था। फिर 4:45 उठने के बाद भाग दौड़, फास्ट स्नान, फास्ट थोड़ा बहुत खाया, चाय पिया, फिर कार भी फास्ट चलाया, फिर 5:45 तक अंदर घुसेगा, प्रेशर, टेंशन। और उसके बाद समझो कोई स्टूडेंट लेट आया तो गुस्सा निकालता था इन द फर्स्ट लेक्चर, और ये जो गुस्सा लास्ट लेक्चर तक चलता था, तो स्ट्रेस ना। खाली 15 मिनट जल्दी उठने चालू किया, उसको मैं बोलते हैं मैजिक ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मैजिक। इंस्टेड ऑफ वेकिंग अबाउट 4:45, 4:30 को उठने लगा। और वो 15 मिनट की वजह से आराम से स्नान करना, आराम से ब्रेकफास्ट करना, आराम से चाय पीना, आराम से कार ड्राइव करना, और क्लास में भी 5 मिनट पहला पहुंचना, रिलैक्स्ड, फुल डे अच्छा जाने लगा। मॉर्निंग जो टाइम है उस समय अगर स्ट्रेस हो गया तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। सो वी शुड बी एबल टू कंट्रोल दैट फर्स्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट जल्दी उठने का। इसको मैं बोलता हूँ मैजिक ऑफ 15 मिनट। जल्दी उठ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। वो 15 मिनट जल्दी उठने से कोई मरने नहीं वाला है, और 15 मिनट ज्यादा सोने की वजह से तुम बहुत कुछ कमाया, बहुत स्टेमिना आया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल माइंड गेम, मेंटल गेम है। तो आप सब लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, इट चेंजेस पीपल्स लाइफ। अभी आपने जो बोला ये 15 मिनट उठना है, 5 4 3 2 1 करना है, ये अगर आप सोचो तो वही बोला कि मैं सुबह 2 बजे सोया, मेरे को उठना है 6 बजे, फिर भी सिल्वा माइंड कंट्रोल हेल्प्स यू इन दैट कि you don't need so much sleep also, right? Sometimes your body will recover the sleep sometime, isn't it? ऐसा नहीं, you need sleep, लेकिन कंटिन्यूस 4-4 घंटा सोने के लिए फिर वो योगी होना चाहिए, कंटिन्यूसली 4 आवर्स। बट वंस और ट्वाइस और थ्राइस, 3 दिन 4 दिन तुम 4 घंटा 5 घंटे में यू कैन इजिली सर्वाइव। नॉर्मल अपना घर पे समझो कोई डेथ हो गया तो अपन ज्यादा सोते भी नहीं है, बट वी स्टिल सर्वाइव। बट इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट कि 4 ही घंटा सो रहा हूं मैं। अच्छा। एंड ये सब करके समझो ऑफिस में गया, ऑफिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे एक मास्टर लिस्ट होता है, उसमें से 6 टास्क लेने का, 6 उस दिन का 6 टास्क। यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 6 टास्क, बस, नॉट मोर देन दैट। 1 2 3 4 5 6। फिर 6 टास्क के बाजू में लिखने का कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। यू हैव टू अलॉट टाइम एंड देन यू हैव डिसाइड कि इसमें से पहला कौन सा करूं, दूसरा कौन सा करूं, तीसरा कौन सा करूं, चौथा कौन सा करूं, पांचवा कौन सा करूं, छठा कौन सा करूं। नॉर्मली पीपल ऐसा बोलते हैं कि जो टफेस्ट है वो पहला करो। आई डिफर स्लाइटली इन दिस। मैं बोलता जो छोटा टाइम वाला है ना, 20 मिनट वाला, पहले वो कर लो। 20 आधा घंटा पहला वो कर लो। तो ऐसा 2 टास्क खत्म होता है ना तो मन को अच्छा लगता है, यार 6 में से 2 तो निकल गया। योर बॉडी वाइब्रेशन इंक्रीजेस, यू फील मोर सेटिस्फाइड। फिर एक टफ जॉब को लो, सो विद दैट हाई लेवल ऑफ मेंटल मेकअप यू आर एबल टू डू दैट 2 आवर 3 आवर जॉब ऑल्सो मच बेटर वे, क्योंकि तुम्हारा 2 काम तो हो ही गया है ना। तो क्या होता है, पहले ही तुम वो 2 घंटा 3 घंटे में अटक जाते हो ना, फिर जो छोटा काम है वो निकल नहीं जाता है और रह जाता है। फिर सो ऑलवेज सी कि जो स्मॉल वर्क है पहले वो खत्म कर दो। यू रियली फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। चलो मेरा 2 काम हो गया, 3 काम हो गया, चलो अभी बड़ा काम उठाते हैं,
और बड़ा काम भी इजी हो जाता है. I always follow the mantra, go from simple to difficult, go from comfortable to uncomfortable. अच्छा. ये मेरा मंत्र है. तो पहले कंफर्टेबल काम खत्म कर दो, फिर अनकंफर्टेबल में आओ, वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा. बट वो अनकंफर्टेबल काम बॉस पहला देता है, बोला इसको खत्म करो. वो भी होता है ना. तो इसमें क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता है. प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है. Yes, सो हाउ yes. डू यू हैंडल दैट देन? अभी सब जो काम करना ही है, हाँ. 2-2.5 घंटे जो भी ये काम कर रहे हैं, वी हैव टू फोकस टोटली. हम्म. पहला अपना मोबाइल बंद. मोबाइल शुड बी ऑन दैट एयरप्लेन मोड, अच्छा. एटलीस्ट एट द मोस्ट नॉर्मल मोड में रह के. वाईफाई बंद, हम्म. डेटा बंद, खाली कॉल आएगा तो लेने का. हम्म. मोबाइल अंदर रख दें. तो पहला डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया उसका. फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन ओवर. फिर सेकेंडली काम में लग गया. काम में भी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द वर्क, यू शुड अलॉट 20 मिनट्स स्लॉट. अच्छा. 20 मिनट्स स्लॉट. मोबाइल में व्हेन द वाईफाई इज वर्किंग, पहले सिरी को बोल देने का अलार्म 20 मिनट्स, फिर बंद कर दो. 20 मिनट तक काम करने का. अच्छा. फिर थोड़ा एक चक्कर मार के पानी पियो. देन गो फॉर द सेकंड 20 स्लॉट. देन गो फॉर द थर्ड 20 स्लॉट. 20 मिनट्स में काम करना चालू करो. यू विल फील मोर रिलैक्स्ड. अच्छा. क्योंकि तुम्हारा मन भी बोलता है 20 मिनट तो काम करना है, चलो अच्छा करते हैं यार. तो मन बोलते 2 घंटा भी काम करना है. देन यू स्टार्ट डूइंग द वर्क वेरी स्लो. टाइम नहीं लगता है. अब देखा रहेगा बहुत बार, सिर्फ 2 घंटे का काम है, अपन स्टार्टिंग से स्लो करते और बाद में जब 1 आवर 40 मिनट्स होता है, लास्ट 20 मिनट्स में गाड़ी भगाते हैं और काम होता भी है, क्योंकि पूरा फोकस कंसंट्रेशन इन द लास्ट 20 मिनट्स में होता है. तो अलॉट 20 मिनट्स स्लॉट इवन फॉर दैट बिग जॉब, चंक इट टू स्मॉलर वर्क, बट 20 मिनट्स में कम करने का. यू विल गेट मोर एंड बेटर रिजल्ट्स. वंडरफुल सर. ये इलॉन मस्क का एक बात भी है कि सेट कि जो 3 महीने में आप कर सकते हो, एक्चुअली 3 घंटे में भी कर सकते हैं. यू नीड टू फोकस सो मच कि 3 घंटे में आप पूरा कंप्लीट. यूजुअली यू कीप पुशिंग वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू कीप बोले यार मेरे से गलती हुई है, मैं ये कर रहा हूँ, एंड अपने आप को तुम सेल्फ डाउट में लेके आते हो. एग्जैक्टली. सो यही बात है. तो आपका और एक एक्चुअली एक्सक्यूज मी, दिस कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ टाइम. कोई भी काम करने, समझो आपने 2 घंटा दिया तो बराबर 2 घंटा होगा. 1.5 घंटा दिया तो 1.5 घंटे में होगा. ये अपने अंदर 1 घंटा दिया तो 1 घंटे में होगा. अच्छा. टाइम एक्सपांड. 3 घंटा तो 3 घंटे में होगा. व्हेन यू आर इन स्कूल एंड कॉलेज, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हो और एग्जाम 6-7 महीने का है, तो एक चैप्टर पढ़ने में 3 दिन जाता है या 4 दिन जाता है. बाद में व्हेन यू रिवाइज अगेन 2-3 दिन जाता है. फिर भी कल एग्जाम है, मेरे को मालूम है अभी उसके आगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो लास्ट दिन को उसके पहले के 4-5-6 घंटे में पूरा बुक तुम पढ़ के दिखाते हो, पढ़ के निकालते हो विद फुल फोकस. कोई तुमको मालूम है इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलने वाला है, कल एग्जाम है, मेरे को पढ़ के निकालना ही है. तो यू आर एबल टू स्टडी विद फुल कॉन्सेंट्रेशन. यू आर एबल टू रिमेंबर. जो मेरे को 4-4, 5-5, 6-6 दिन लगता था, मैं 6 घंटे में खत्म कर रहा हूं. क्योंकि तुम्हारा 6 घंटा है ही टाइम, तो माइंड को बोल दिया 6 घंटा ही है, फट घुमा रहे हो, सब समझ में आ रहा है. क्या बात है सर. द एनालॉजी इज सो परफेक्ट एंड वंडरफुल. क्या आई मीन यू आर अ कम्युनिकेशन स्किल कोच ऑल्सो. आप सिखाते हो लोगों को किस तरह बात करना चाहिए और किस तरह रिजल्ट आना चाहिए. तो यू लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए व्हाट आर द मेथड्स यू वुड लाइक पीपल टू अप्लाई? क्या होना चाहिए? बी सिंपल, बिकॉज अय्यर सर का जो बेसिकली ही इज अ टीचर, इज अ कोच, ही हैज गॉट मेनी डिफरेंट स्किल सेट्स. सो व्हाट हैपेंस इज टू नो मोर वी विल आस्क यू टू गो एंड विजिट हिम, बिकॉज हम लोग वी आर गेटिंग स्मॉल छोटे ट्रेलर दे रहे अय्यर सर. सो हियर हाउ डू यू ऑन ए पर्सनल लेवल प्लस इन द प्रोफेशनल लेवल, हाउ कैन यू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स? मतलब आप किस तरह बात करना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? फॉर इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, नंबर 1, you must listen. That listening quality has to be there. Listen with a view to understand what he's saying. Many a time because of the mobile and TV, we have forgotten that listening quality. We listen with a view to reply. वो 2 सेंटेंस बोलेगा, 5 सेंटेंस में से आपको मालूम है ये क्या, अपन रेडी होता अपना आंसर. In school,
we were taught how to read, we were taught how to write, and we were taught how to speak, but we were never taught how to listen. तो कैसा सुनने का कोई सिखाया नहीं तो अपन अपना फंडा मारते हैं, कोई सिखाया नहीं। और आजकल व्हाट्सएप ज्ञान भी रहता है, व्हाट्सएप ज्ञान भी रहता है। लिसनिंग का बेसिक डिसिप्लिन ही जब तक सामने वाले का सेंटेंस खत्म नहीं हुआ अपन बोलना नहीं चाहिए, वो तो बेसिक डिसिप्लिन है, लेकिन स्कूल में सिखाया नहीं है, तो अपन अपने हिसाब से लिसन करते हैं। सेकेंडली, व्हेन यू लिसन विथ टू समवन, आई ऑलवेज से यू मस्ट लिसन विद द आईज। तो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो सर, यू शुड लिसन विद द ईयर। नो, अरे लिसन विद द ईयर, लेकिन आईज भी सामने होना चाहिए। शुड लिसन विद द आईज। सामने वाला बात कर रहा है और मैं बोलता अच्छा बोलते जा मैं कान से सुन रहा हूं, वो इंसल्ट है। सो व्हेनेवर यू लिसन टू समवन, इट शुड बी विद द आईज। पूरा आंख उसके आंखों में लगना चाहिए। कभी कभी आंख से आंख मिलाना मुश्किल जाता है, आई कॉन्टैक्ट। तो उस आदमी के दोनों आंख के सामने जो आईब्रोज है, दोनों आईब्रोज के बीच में जो है जगह, वहां देखने का। समटाइम लुकिंग एट द आईज you become uncomfortable or you make him uncomfortable. Both ways it works. Both ways. तो वेरी सिंपल टेक्निक कि तुम आईब्रोज के बीच में देखो, उसको लगेगा तुम उसको देख रहा है, और उसके आईब्रोज में देखते रहने का और सुनने का, लिसन करने का, ट्राइंग टू डाइजेस्ट व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। स्टीवन कोवी सेज यू शुड लिसन विद द व्यू टू अंडरस्टैंड एंड नॉट लिसन विद द व्यू टू रिप्लाई। ये हो गया लिसनिंग का स्टोरी। थोड़ा हल्का सा स्माइल होना चाहिए। एनएलपी में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, इफ एट ऑल यू आर एबल टू फॉलो द सेम ब्रीथिंग पैटर्न, समझो वो ब्रीथ इन तो अपन भी ब्रीथ इन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइनमेंट बहुत अच्छा होता है। वी आल्सो से समथिंग कॉल्ड मिररिंग। समझो उसने हाथ ऐसा किया तो अपन भी थोड़ा हल्का सा ऐसा किया। नॉट वेरी ऑब्वियस होना नहीं चाहिए, लेकिन आंख थोड़ा बहुत अपन मिररिंग कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन में एक अलाइनमेंट हो जाता है। राइट। एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग, व्हाट एवर स्पीक, उसका इफेक्ट 7% इज बिकॉज ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स में वापरता हूं उसका इफेक्ट 7% ही है। 38% इज द टोन। आवाज का टोन ऊपर नीचे करना चाहिए। एंड द रिमेनिंग 55% इज बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत से भाषण भी देखता हूं, तो भाषण में हाथ पीछे रखते हैं, बात करते हैं, एब्सोल्युटली इनएफेक्टिव। हाथ क्यों दिया? यूज करने के लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट प्लेइंग कौन बनेगा करोड़पति, हु इज गोइंग टू प्ले द फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। वापस हाथ इधर। अमिताभ बच्चन यूजेस द हैंड्स। हाथ ऐसा रख सकता है, ऐसा रख सकता है, ऐसा रख सकता है, थोड़ा लूज रखने का, तो हाथ तुम्हारे कंटेंट के साथ अपने आप मूव होएगा, अप एंड डाउन। लॉक करके नहीं रखने का। सो यू हैव टू यूज योर वर्ड्स प्रॉपरली, यू हैव टू यूज योर टोन ऑल्सो प्रॉपरली। उसका वेरिएशन होना चाहिए। एंड द एंटायर बॉडी शुड स्पीक व्हेन यू कम्युनिकेट। You think of any top leader which you admire today, anyone, और YouTube में जाके उसका वीडियो देखो, तो खाली आवाज से बात नहीं करते, खाली टोन से बात नहीं करते, बॉडी से बात करते। एग्री, कंप्लीटली एग्री। तो ये देखो, अभी आप बोल रहे हैं कुछ लोगों में एक तो टोन नहीं होता है, किस लोगों में वो पहले से स्किल सेट नहीं होता, वो डेवलप हो सकता है। मतलब एट अ पर्टिकुलर। देखो अभी अगर मैं चाहूंगा कि मेरे को अमिताभ बच्चन का टोन चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू यूज आवर व्हाटएवर गॉड गिफ्टेड गिफ्ट व्हिच वी आर हैविंग, बट यू कैन यूज द हैंड्स। तो कहीं ना कहीं एडिशन यू यूज द वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स। इवन आई हैव सीन सम स्पीचेस जो नॉर्मल टोन में बात करते हैं, नॉट मच ऑफ बॉडी लैंग्वेज, लेकिन उसका कंटेंट इतना पावरफुल रहता है, कंटेंट, कि तुम उसमें फिदा हो जाते हो। बरोबर। कंटेंट इज वेरी पावरफुल। ये तीनों कॉम्बिनेशन है, बट एटलीस्ट अभी लाइक शेर शायरी है, कोई अच्छा शेर मार दिया, वी अप्रिशिएट।
बैठ के मारते हैं. Agreed, sir. क्या बातें बोली आपने. And people should apply and use it to in their day-to-day life, and everybody has an opportunity to improve and get better in what they do. Yes. So, All this require practice. practice होना चाहिए, देखना चाहिए अपना. Practice कैसे करते हैं, मतलब मिरर के सामने? We have a 10 session public speaking course, purely public speaking. तो उसमें हम लोग सिखाते हैं बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कंटेंट कैसे प्रिपेयर करने का. अच्छा. स्टार्टिंग में क्या बोलने का, स्पीच के स्टार्टिंग में, फिर मिडिल में क्या आना चाहिए, फिर एंडिंग कैसा करने का, हाउ यू वांट एक्शन. फॉर एग्जांपल समझो तुम्हारा सोसाइटी में तुमको बोला 15 अगस्त को आके एक स्पीच दो. यू शुड नॉट स्टार्ट विद आज 15 अगस्त है, जो सब लोग जानते हैं उससे स्टार्ट नहीं करने का. आज देश आजादी हुआ, ये बोलने का नहीं. यू मस्ट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, यू मस्ट स्टार्ट विद अ कोट, यू मस्ट स्टार्ट विद सम सस्पेंस. जहां फर्स्ट लाइन में यू शुड बी एबल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को जब स्पीच में बुलाती है तो मैं पहला देखता हूं, पहला पूछता हूं ऑडियंस कितने रहेंगे, उनका एज ग्रुप क्या रहेगा, बच्चों का सामने अलग भाषा, बड़े लोग के सामने अलग भाषा, अलग एग्जाम्पल, बच्चों के सामने पंचतंत्र का एग्जाम्पल, बड़ों के सामने सम अदर एग्जाम्पल्स. So you should first of all read the profile of the audience. कितना educated है, कितना जेंट्स है, कितना लेडीज है. ये प्रैक्टिस के साथ ही हुआ है आपका? ये सब प्रैक्टिस के साथ ही होगा. आप लोगों को मोटिवेट करते हैं टू अचीव देयर गोल्स. यू गेट पीपल ना जोश में लेके आते हैं. आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं फिर? सुबह उठने के बाद पहला स्माइल कि भगवान थैंक यू एक दिन एक्स्ट्रा दिया. फिर मैं बोलता आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम लकी, आई एम हैप्पी. 21 बार बोलता हूँ विथ फीलिंग. स्लो बोलता हूँ आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच. स्ट्रॉन्ग का मतलब विजुअलाइज करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं. रिच का मतलब विजुअलाइज करता हूँ कि मैं रिच हूं. आई एम लकी, जिंदगी में बहुत जगह पे मैं लकी हुआ हूं. People may call it coincidence, but I was purely lucky. And I'm happy. हंस रहा हूं मैं. 21 बार विथ फुल फीलिंग बोलता हूं. फिर ही बेड छोड़ता हूं. फिर जमीन में पैर रखने के पहले गायत्री मंत्र 3 बार, फिर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, फिर उठता हूं, फिर वॉशरूम जाता हूं. कम वॉट में आई गो एंड प्ले बैडमिंटन. I got a very highly motivating group. फिर 15-20 मिनट प्राणायाम, उसके बाद ही न्यूज़पेपर, उसके बाद ही व्हाट्सएप. अच्छा. नहीं तो मेरे वाले अगर मैं व्हाट्सएप में पहला घुस गया ना तो ये सब एक्टिविटी फ्लॉप जाने वाले. फिर आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम लकी, आई एम हैप्पी. मैं दिन में कार में बैठता हूं, बार बार बोलते रहता हूं. I got a gratitude list. शुक्राना, शुक्रिया. All the vacations which we have done, all the good things. SSC पास हुआ, 12th पास हुआ, CA पास हुआ, ये हुआ, पहला घर, दूसरा घर, पहला कार, दूसरा कार, शादी के दिन, बच्चों का शादी के दिन, ये सब को मैं थैंक्स बोलता हूँ. कम से कम 250 आइटम है, लिख के रखा हूं मोबाइल में. अच्छा. उसमें से 10-15 को 1 मिनट में थैंक्स बोलता हूं. जस्ट विजुअलाइज दैट इवेंट, बस देन यू आर देयर. अपना जो माइंड है ना, ऑन ऑटो मोड इट इज ऑलवेज नेगेटिव. अच्छा. अगर उसको खुला छोड़ दो नेगेटिव ही है. पॉजिटिव करना पड़ता है. अच्छा. बॉडी गंदे रहता है, स्नान करना पड़ता है. सुबह उठने के बाद टीथ गंदे रहता है, ब्रश करना पड़ता है. अच्छे के लिए यू हैव टू मेक एन एफर्ट. गंदगी ऑटोमेटिक है. क्या पॉइंट है? मोबाइल बंद ही रहेगा, डार्क. दबाने से लाइट आता है, अदरवाइज इट ऑलवेज डार्क. सो आवर माइंड ऑन ऑटो मोड इज ऑलवेज नेगेटिव. लाइक समझो एक खेत है, उधर ध्यान नहीं देगा तो जंगली घास वगैरह उगनी चालू हो जाएगा. बरोबर.
बट आप लोगों ने ध्यान दिया तो आज चावल गेहूं कुछ तो हो गया. यू हैव टू मेक एन एफर्ट. कुछ मत करो, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही घूमता रहेगा. नॉर्मली पीपल हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंशन. या तो हेल्थ का प्रॉब्लम, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम. भले पैसा कितना भी हो, ये तीनों में से कोई ना कोई चीज दिमाग में घूमते ही रहेगा. अनलेस यू विथ एफर्ट डाइवर्ट इट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी विथ दिस ग्रैटिट्यूड. अगर समझो बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, अवेयर होना चाहिए कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, किसी के बारे में गुस्से में सोच रहा हूं, मन ही मन किसी को गाली दे रहा हूं, जो 10 साल पहले हुआ इवेंट को. 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप एंड गो टू ग्रैटिट्यूड. थैंक यू. एंड स्टार्ट विथ थैंक यू. एक इवेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर द बॉडी, थैंक्स फॉर द हैंड, थैंक्स फॉर वाइफ, थैंक्स फॉर फैमिली, थैंक्स फॉर टीवी, थैंक्स एवरीथिंग, थैंक्स फॉर फूड, थैंक्स. क्योंकि कुछ लोग मैं देखा हूं 1-1, 2-2 घंटा दिमाग में वो नेगेटिविटी सोचते 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 बर्बाद हो जाते हैं. और वापस एक बात बोलता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 तक चला जाता है. इट हैज टू बी रिवर्स. 5, 4, 3, 2, 1. क्योंकि मालूम है उसके आगे तो जगह ही नहीं है, तो एक्शन में जाने का. फिर यू हैव टू एक्ट नाउ. इट हैज टू बी रिवर्स. क्या बात है सर. सो सुपर. लेकिन देखो अब सर, अय्यर सर, ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सबका जिंदगी में अलग अलग चैलेंजेस है. कुछ नहीं, हर एक का एक प्रॉब्लम रहता है. तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम में आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं? मतलब सब हालत खराब है, पैसा नहीं है, हेल्थ का प्रॉब्लम, हाउ डू यू हैंडल दैट? वो क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्वेश्चन. हाँ. गुड टाइम्स में पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत इजी हो, तो सब लोग रखते ही हैं. करते हैं. चैलेंजिंग टाइम्स में कैसे करने का? हाँ. पैसे में बर्बाद हो रहा है, रिलेशनशिप खराब है, डिसीज में, एक ही सॉल्यूशन है, ग्रैटिट्यूड. द ओनली प्रेयर. थिंक ऑफ ऑल द गुड टाइम्स विच हैपन टू यू. वापस बोलता हूं, 15 मिनट्स का मेडिटेशन करो. 15 मिनट्स. उसका टेक्निक है कुछ? सिंपल. आंख बंद करने का, सांसों में ध्यान देने का. सांस में भी ध्यान के, सम पीपल से फोकस ऑन द ब्रीथिंग. उसका भी टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि आंख बंद किया, यू लीव द ब्रेथ, एज्यूम दैट दिस इज द लास्ट ब्रेथ, एज्यूम द लास्ट ब्रेथ, खत्म. फिर भी सांस लिया तो थैंक्स, थैंक्स. वापस ब्रीथिंग छोड़ दिया, हो गया खत्म मेरा जिंदगी. वापस आया, थैंक्स, थैंक गॉड यू हैव गिवन मी वन मोर ब्रेथ. दुनिया में सबसे कॉस्टलीस्ट थिंग इज द नेक्स्ट ब्रेथ. आई एग्री कंप्लीटली. वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो गाड़ी बंगला कुछ नहीं है. बागबान में अमिताभ बच्चन ने डायलॉग मारा था हेमा मालिनी को देख के. मैं सांसों को देख के बोलता हूं, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं. तो यू आर जस्ट क्लोज योर आइज, एक्सक्यूज मी, एंड मोबाइल खोल के, एक तो मोबाइल में खोल के सब लिखना पड़ेगा, ऑल द गुड थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ. All good things happen in your life. Write down where you laughed a lot, happy. और उसके बारे में एक सोच के खाली थैंक्स. You will get a solution somewhere. Sure है. Better than this is better than thinking all the negative things which is happening in your life. नेगेटिव हो ही रहे हैं, तुम उसके बारे में सोचते रहेगा तो अगेन यू आर अफेक्टिंग योर बॉडी. यू हैव टू बी स्ट्रांग, एंड स्ट्रांग के लिए एक ही तरीका है, द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. कुछ तो जिंदगी में अच्छा होता है. खाना तो मिल रहा है, सांस ले रहे हो, बीवी बच्चे साथ में है, समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ विच इज गुड. फोकस,
फोकस फोकस फोकस. नेगेटिव में चला गया, 5 4 3 2 1 फोकस. भले कुछ समय के लिए ही नहीं करो. नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी करना तो पड़ेगा ही ना. एंड सम इट स्टार्टेड अफेक्टिंग योर हेल्थ, देन गो एंड सी अ डॉक्टर और समवन, साइकोलॉजिस्ट और समवन. मेडिसिन भी साइकेट्री में बहुत आजकल काम किया है. अच्छा. हाँ. सो आप जो लोगों को हेल्प करते, सपोर्ट करते, मोटिवेट करते हैं, तो इसमें ऐसा कोई एक एग्जांपल दीजिए जहाँ पे आपने लोगों का माइंडसेट चेंज किया और उनका जिंदगी में कुछ अलग हुआ है. वुड यू गिव मी एन एग्जांपल, समथिंग व्हिच यू हैव टच्ड पीपल्स लाइफ? अभी I had a friend called Savant. ओके. He was having diabetes. अच्छा. और बोला कि अय्यर सर, ये जब स्वीट देखता हूँ ना, आई कुड नॉट कंट्रोल. 3 दिन मेरे ऑफिस में बुलाया, आंख बंद करवाया, मेडिटेशन करवाया, और मेडिटेशन के स्टेट में उसको बोला सब स्वीट्स देख. दिख रहा है क्या? दिख रहा है. उसके ऊपर कॉकरोच घूम रहा है, स्नेक्स घूम रहा है, जरा विजुअलाइज कर. 3 दिन के बाद वो बोला स्वीट्स को टच करने का मन ही नहीं आ रहा है. सिंपल, सब माइंड गेम है. अच्छा. तो ही काइंड ऑफ बेनिफिट बाय इट. दूसरा एक फ्रेंड था, ही हैड टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, और बैंक से नोटिस आ गया पे पैसा भरो. उसके बाद पैसा नहीं है. तो आया, अय्यर सर क्या करूं? मैं बोला विजुअलाइज वॉट एवर आउटकम यू वांट. तो ही विजुअलाइज दैट आउटकम. फिर अगले दिन बैंक से मिलकर मेरे आगे बोल रहा है कि जो आउटकम मैंने सोचा था वही हुआ. अच्छा. मैं पूछा क्या लोन माफ किया क्या? लोन माफ नहीं किया, बट आई वांटेड एन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर. तो यही लोन अब भी कभी पैसा नहीं मांगे उन लोग. बोला ठीक है 1 साल के बाद देना, विल चार्ज इंटरेस्ट. बोला इंटरेस्ट लो बट मेरे को टाइम दो. और यही पिक्चर में देख चुका था ऑलरेडी कि मैं मैनेजर के सामने बैठा हूं, फिर वो लोग मेरे को टाइम दे रहे हैं और हम हाथ मिला रहे हैं. मैजिक, इट हैपेंड. It works. It works. It works on the basis that you should believe it. ऐसे नहीं करके देखते हैं, होएगा तो होएगा, नहीं होएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं. You ought to have belief. Sir, wonderful है सर. आपका इतना जो ये एनालॉजीज है, थॉट्स है, इट्स वंडरफुल एंड इट्स गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ लाइफ्स. एक लास्ट क्वेश्चन है. देखो ये सारे मेथड्स बताए, दिस लुक्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल. एक बात में आप डेफिनेटली बिलीव करते हैं, आप बोल रहे हैं कुछ मंत्र बोलते हैं कुछ, तो हर एक लोग जो अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं देयर इज सम पावर व्हिच इज अबव. Definitely. उसके लिए ग्रैटिट्यूड अलग होता है. Absolutely. सो यू सेड यू गो टू टेंपल एवरी ट्यूसडे. Every Tuesday. सो समथिंग ऑफ दैट हैज टू बी देयर विद इन पीपल, राइट? 100%. तो उसके बारे में कुछ एक पॉइंट बताइए खाली प्लीज. Even I visualize like this, हाँ. समझो कार में बैठा हूँ. हाँ. You talked about motivation. कि यहाँ एक लाइट जल रहा है. कुछ समय के बाद यहाँ गया, कुछ समय बाद हार्ट में गया, कुछ समय बाद पेट में गया. एक दिया, 1 लैम्प. इट कैन बी एनीथिंग. कल वो मैं विजुअलाइज करेगा ना, आई गेट रिलैक्स्ड. आई बिकम ए मेडिटेटिव मोड. कितना भी टेंस्ड हो, एक बार मैं दिया देख लिया, हाई मेरे पास पावर मेरे साथ है, ऐसा एक फीलिंग आता है. पावर इज दैट. यूनिवर्स बोलो, गॉड बोलो, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, आई बिलीव इज दैट. मैं ये नहीं बिलीव करता कि वो मंदिर में है. यहाँ वो हर जगह है, बाइक में है, इधर है, सब जगह. एक मंदिर में आने के बाद वहां एक पॉजिटिविटी रहता है. राइट. मंदिर में बैठ के तुम गाली नहीं दे सकते. मंदिर में बैठ के तुम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते. बरोबर. सामने समझो कि सामने गणपति है और तुम किसी के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट. वो वाइब्रेशन ऐसा है उधर. तो आई हैव मेड अ हैबिट फॉर माय इवन फैमिली मेंबर्स, सब गेट दैट वाइब्रेशन, गेट दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. घर से निकलते समय भले शू पहना रहेगा, फिर भगवान के सामने खड़ा हो जाने का, भगवान भी बाहर निकल रहा हो, आने तो बचा लेना मेरे को. इवन विथ द शूज ऑन, नो प्रॉब्लम. निकलने का पहला, वापस जाने के बाद थैंक यू. हैव दिस हैबिट. वेरी सिंपल थिंग.
कोई प्रेयर मालूम होना कोई जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू ट्रस्ट, बिलीव मैं ही सब कुछ हूं, माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर progress have happened in my life, it just happened without any planning. कोई सामने से आदमी आया, बोला यार ये करेगा क्या, हो गया काम. The powerful tool you have and you created and given is gratitude. Gratitude. उसके थैंक्स. ऐसा कोई जगह पे मैं अटका हूं. Once we had gone to Munnar, और होटल was somewhere in jungle, और मैं और मेरा फैमिली थे, और वो बस वाला आया, टैक्सी वाला हमको रोड में छोड़ दिया और बोला वो जंगल में तो मैं नहीं आएगा. तो बाजू में एक रेस्टोरेंट था, मैं पूछा अंदर तक दूसरा कोई टैक्सी मिलेगा क्या. तो अंदर से एक आदमी आया कि तो टैक्सी चाहिए ना, मैं दिलाएगा, डोंट वरी. फिर उसने एक हाथ से फोन करके टैक्सी मंगाया, वो अंदर तक वो खुद आके छोड़ा. वो इतना जंगल के अंदर होटल था कि हम डर गए थे कि ये आदमी भी भरोसा नहीं है. फिर वो बोला कि मैं एरिया के एसीपी हूँ. अच्छा, तुम्हारा मैं बात सुना, आई डोंट नो उस समय वो आदमी वहां बैठना चाहिए, हमको होटल में पहुंचना चाहिए. दिस इज मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन, कोइंसिडेंस बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, कुछ भी नाम दो. आई ट्रस्ट. वंडरफुल सर. वन लास्ट वर्ड फॉर पीपल आर लिसनिंग टू अय्यर सर. एक लास्ट वर्ड बोल दीजिए सर. ग्रेटिट्यूड तो है, और एक वॉट एवर यू लर्न इन लाइफ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. Whether you learn meditation, whether you learn positive mental attitude, whether you learn memory techniques, whether you learn public speaking, most of the time people say ये 4 दिन चलता है, 5वां दिन we come back to normal. तो I think Brian Tracy has said, I don't remember exactly, वैसे तो स्नान करने के बाद भी अगले दिन स्नान करना ही पड़ता है. तो similarly, whatever you learn, you have to practice every day. All these solutions are not one tablet eaten medicine नहीं है. Whatever you learn is lifelong. What I learned in 1991, today is 2024. Not a single day I have missed of 15 minutes of meditation. Not a single day. Super. Whether I am sick, whether I am in the city, whether I am gone for a picnic, एनी आउटिंग, कैलाश मानसरोवर, एनीवेयर, सुबह उठने के बाद जब तक वो 15 मिनट का मेडिटेशन नहीं होएगा ना, हमारा दिन शुरू नहीं होता. That's the discipline you gave yourself, and we expect people to. Exactly, that is the word, discipline. Discipline. मोबाइल बजा के उठना चाहिए. Discipline. It has to. क्या बात है सर. Thank you so much for coming on Thank the you show and enlightening people of what can be done, what are the possibilities, what you can do to take life ahead in the most straight and disciplined way. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Ayyar sir on the show for us.